السلام علیکم ناظرین، 4 خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ 2 لاکھ سرکاری ملازمتوں کے لیے ریاستی حکومت پابند عہد، 50,000 ملازمتوں پر تقررات، جاب کیلنڈر جاری۔ اشوک نگر میں کوچنگ سینٹر کا بھٹے وکرمارکا نے کیا افتتاح۔ فارمولا 1 ریس کے معاملے میں تحقیقات کا سامنا کرنے کے لیے تیار، معاہدے کے مطابق کام کیا ہے KTR کا دعویٰ۔ وقف پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ پر قواعد سے انحراف کا الزام، بیرسٹر اویسی کی اسپیکر لوک سبھا سے نمائندگی۔ اور بیوی کی غیر موجودگی میں ساس کی مبینہ عصمت ریزی کا شرمناک واقعہ، بالاپور پولیس وحشی شخص کی تلاش میں، متاثرین نے کی انصاف اور ملزم کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیومیکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز سے رابطہ کریں۔ کیومیکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیومیکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیومیکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامر ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیومیکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالارجن کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹے وکرمارکا نے اشوک نگر میں سول سروسز کوچنگ سینٹر کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر بھٹے وکرمارکا نے کہا کہ تلنگانہ کے مقامی لوگوں کو سرکاری ملازمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے وقت 2 لاکھ ملازمتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے حصے کے طور پر 50,000 ملازمتوں پر تقررات کیے جا چکے ہیں۔ ہر سال جاب کیلنڈر جاری کیا جا رہا ہے۔ UPSC امتحان کے لیے کافی ذہین ہونے کے باوجود متوسط طبقے کو اپنی مالی پریشانیوں کی وجہ سے کوالیفائی کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت نے ان کو مالی طور پر حوصلہ افزائی کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمے کی جانب سے سول سروسز امتحان کی ترغیب دینے کے لیے 1 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں۔ ریاستی حکومت نے بھی
मेंस में कामयाबी हासिल करने वालों और इंटरव्यू के लिए मुंतखब होने वालों को 1 लाख रुपए देने का फैसला किया है। भट्टे विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना से सिविल सर्विसेज इम्तिहान के लिए मुंतखब किया जाए तो रियासत के लिए अच्छा होगा। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि हैदराबाद फार्मूला 1 रेस की मेजबानी करना 2 दहाइयों का ख्वाब था। 2003 में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के उस वक्त के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस सिलसिले में फार्मूला 1 के सीईओ से मुलाकात की थी। इन 2 दहाइयों के ख्वाब को चंद्रबाबू के शागिर्द ने नहीं बल्कि हमने पूरा किया। केटीआर ने कहा कि किसी भी शहर में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना आम बात है। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने 17,608 करोड़ रुपए खर्च किए थे। केटीआर ने कहा कि रियासत को 1 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी लाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फार्मूला ई रेस के मामले में जो माहिदा हुआ था, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जितने केसेस दर्ज करना है कर लें। उन्होंने कहा कि वो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। राजभवन में कांग्रेस और बीजेपी मिलकर बीआरएस को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो तहकीकात का सामना करेंगे। हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए फार्मूला ई मुनक्किद किया था। భారతదేశానికి ఫార్ములా 1 రేస్ రావాలి, ఫార్ములా రేసింగ్ రావాలి అనే కళ ఈనాటిది కాదు. ఈనాడున్న తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి గురువు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఆయన 28 సెప్టెంబర్ 2003 ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఉన్నప్పుడు అప్పటి F1 చైర్మన్ బర్నీ ఎకిల్స్టోన్ అనే పేరు, బర్నీ ఎకిల్స్టోన్, ఆనాడి F1 CEO, చైర్మన్ కాదు CEO, ఆయనను కలిసి మా దేశానికి, అందులో మా హైదరాబాద్కి F1 కావాలి, మా రంగారెడ్డి జిల్లాలో పెట్టాలనే ప్రయత్నము ఆనాడు 2003లోనే, ఇది ఆనాటి కళ, అంటే 2 దశాబ్దాల కళ. వాళ్ళ గురువు గారు కన్నా కళను మరి శిష్యుడు నెరవేర్చలేదు, కానీ మేము నెరవేర్చినాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు 2001లో 2002లో కలగంటే దానికి తగ్గ విధంగా చంద్రబాబు అక్కడితో ఆగలేదు. అప్పుడు సీనన్న టూరిజం మినిస్టర్ టీడీపీ గవర్నమెంట్లో మొత్తం అప్పుడు F1 ఇక్కడ రేస్ కండక్ట్ చేయడానికి మొదలు 1500 ఎకరాల భూమి సేకరించాలనుకున్నారు హైదరాబాద్. सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल 2024 का जायजा लेने के लिए कायम की गई जॉइंट पार्लिमानी कमेटी के सदर नशीन जगदम्बिका पॉल पर पार्लिमानी कवायद से इन्हिराफ करने और अपनी मर्जी से फैसले लेने का इल्ज़ाम आयद करते हुए स्पीकर लोकसभा ओम बिरला से शिकायत की। अपने एक ट्वीट प्याम में उन्होंने कहा कि कमेटी अरकान से मुशावरत व इत्तेफाक राय के साथ कवायद को मलहूज रखते हुए फैसले करती है, लेकिन सदर नशीन कमेटी ने कर्नाटक के चंद मुकामी मसाइल के हवाले से इस रियासत का दौरा किया, जबकि कमेटी कर्नाटक में अपने बाकायदा इजलास मुनक्किद कर चुकी है। कमेटी को किसी मुकामी उमूर की तहकीकात का हक नहीं। ये कमेटी वक्फ बिल के नकाइस और उसके कानूनी और दस्तूरी उमूर के लिए बनाई गई है, न कि किसी मुकामी मामले की जांच पड़ताल के लिए। सदर नशीन कमेटी का ये रवैया पार्लिमानी क़वायद की सरीहन खिलाफ वर्जी करार पाता है। सदर मजलिस ने उम्मीद जाहिर की कि स्पीकर लोकसभा सदर नशीन कमेटी के इस रवैये का नोट लेंगे। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के रूबरू तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को नस्ब करने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। 9 दिसंबर को तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की नकाब कुशाई का प्रोग्राम होगा। इसके लिए हुकूमत तेजी से तैयारियां कर रही है। हुकूमत ने पहले ही तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की बड़ी गेट बाहुबली को पहले वात्सव के नाम पर मुहरबंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट के गेट के सामने जेसीबी से खुदाई का काम जारी है। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि इस काम पर हुकूमत 6 करोड़ रुपए तक खर्च कर रही है और ये काम 9 दिसंबर के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असम्बली हरीश राव ने सेक्रेटेरिएट में तब्दीली करने के फैसले पर एतराज़ किया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत में ग्रीन टेक्नोलॉजी फायर सेफ्टी फॉर्म्स के मुताबिक तामीर किया गया था,
लेकिन वास्तव का पागलपन है, इसमें तब्दीली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट में हर थोड़े दिन में तब्दीली की जा रही है। उन्होंने कहा कि वास्तव बराबर नहीं है, एक गेट की तब्दीली पर 4 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि 11 माह के अंदर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवामी मुखालिफत बढ़ चुकी है। पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को तंजीमी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए काम करें। उन्होंने पार्टी के तंजीमी इंतखाबात के लिए ज़िले सुदूर और रिटर्निंग ओहदेदारों की रहनुमाई की। उन्होंने कहा कि अवाम की मुखालिफत प्रोग्राम पर जदोजहद करें। 11 माह में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवाम में मुखालिफत शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल के लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत धान की खरीदी नहीं कर रही है, किसानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। कांग्रेस ज़ेर इख्तिदार रियासतों में रियासत का दिवालिया निकल चुका है। इस इजलास में पार्टी के दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि जात पात की मरदमशुमारी से आरएसएस और बीजेपी अवाम को गुमराह करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सर्वे से मुसलमानों को दूर रखना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 121 से लेकर 134 नंबर तक BCE के बारे में सवालात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगु और इंग्लिश सॉफ्टवेयर है। उन्होंने कहा कि 80,000 शुमार कुनिंदगान में ज़्यादा अफराद उर्दू से नावाकिफ़ हैं। इसके लिए उर्दू सॉफ्टवेयर के लिए कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर कोई इस सर्वे में हिस्सा लें और इस सर्वे को कामयाब बनाएं। सदर PCC महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कम उम्री में सियासी लीडर बनने वाले रेवंत रेड्डी हैं। गांधी भवन में रेवंत रेड्डी से मौसूम किताब की रस्म इजराई के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत को खातिर में ना लाने वाले, आमिराना हुकूमत चलाने वाले KCR के खिलाफ जिदोजहद करने वाले रेवंत रेड्डी हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जुमा के दिन रेवंत रेड्डी की सालगिरह है। इस मौके पर रेवंत रेड्डी की किताब की रस्म इजराई की गई। किताब के मुसन्निफ वेणुगोपाल रेड्डी की सताइश की। उन्होंने PCC के तरफ से रेवंत रेड्डी को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान निजामुद्दीन ने जामे सर्वे के खिलाफ झूठी खबरों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जात पात की मरदमशुमारी को NRC से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इस सर्वे में हिस्सा लें। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी से अपील की है कि इस 7% जात पात की मरदमशुमारी सर्वे में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि BJP और RSS इस सर्वे के खिलाफ हैं। राहुल गांधी आबादी के तनासुब से आमदनी को तकसीम करने के मकसद से यह सर्वे करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी समाजी इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी क़िबला अलमारूफ खुसरो पाशा सज्जाद नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज गुलबर्गा शरीफ का चाहशुंबे को साने इर्तिहाल हो गया। खुसरो पाशा कुछ अरसे से अलील थे। जुमेरात को बाद नमाज मगरिब मस्जिद अहाता दरगाह शरीफ गुलबर्गा में नमाज जनाजा अदा की गई और सरकारी एजाज़ात के साथ तदफीन अहाता दरगाह गुलबर्गा में अमल में आई। नमाज जनाजा और तदफीन में हैदराबाद, अजला तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मुल्क के कई इलाकों से उलमा इकराम, मशाइखीन व अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने डॉक्टर सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी क़िबला अलमारूफ खुसरो पाशा सज्जाद नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज गुलबर्गा शरीफ के साने इर्तिहाल पर गहरे दुख का इजहार किया। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी जो दिल्ली में थे, खुसरो पाशा के इंतकाल की खबर सुनकर हैदराबाद वापस हुए और गुलबर्गा पहुंचकर मरहूम के अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। अपने एक बयान में बैरिस्टर अवैसी ने मरहूम की दीनी, इल्मी, अवामी खिदमात को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि मिल्लत को असरी तालीम से मुस्तफ़ीद करने दरगाह के ज़र इंतज़ाम मेडिकल कॉलेज भी कायम किया गया था। मरहूम मिलनसार, इनकिसारी, खुलूस व मोहब्बत के पैकर थे।
صدر مجلس نے کچھ دن قبل ان کے ساتھ اپنی ملاقات کا بھی تذکرہ کیا. انہوں نے مرحوم کے حق میں دعائے مغفرت کی اور امید ظاہر کی کہ ان کے جانشین ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو کر قوم و ملت کی خدمت کرتے رہیں گے. حضرت مولانا خسرو حسینی صاحب سجاد گلبرگ شریف خواجہ بندہ نواز کے سدراز، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا ہم تمام قوم اور ملت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے حضرت کا اس دنیا سے چلے جانا. اور آپ کی جو خدمات رہی ہے ان تمام تعلیمی اداروں کو چلانے میں، میڈیکل کالج کو چلانے میں، وہ ہم کبھی اس کو بھول نہیں پائیں گے. اور جس اخلاص کے ساتھ وہ محبت کے ساتھ ہر ایک شخص سے ملاقات کرتے تھے، اور مجھے بھی اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ جب کبھی میں حضرت سے ملا یہاں پر آ کر، اور حیدرآباد میں کبھی کسی دعوت تقریب ملاقات ہوتی تو وہی ملنساری انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ ملتے تھے. اور میرے خیال سے آج سے 2-3 ہفتے پہلے جب AIG ہاسپٹل میں تھے تو میں جا کر ملا تھا. جب طبیعت تھوڑا اچھی ہوئی، لوگوں سے ملاقات کر رہے معلوم ہوا. عاقب بابا سے میں نے پوچھا تو پھر جا کر بہت دیر بیٹھا، ملاقات کیا، اور بڑی یادگار ملاقات تھی. اس وقت بھی حضرت میرے کو بولے کہ آپ کچھ پیجئے، چائے پیجئے. تو میں بولا حضرت آپ بھی، میں صرف آپ کی ملاقات کرنے آیا، آپ ابھی ماشاءاللہ سے طبیعت اچھی ہوئی آپ کی. تو مرحوم خسرو حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھیے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے اور اگر کچھ چائے یا بسکٹ یا نہیں کھاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کے خبر کے پاس آیا ہے. تو خیر میں حضرت کے حکم پر اس کی اطاعت کیا اور بیٹھا. بہت دیر میرے سے بات کیے، وقف بل کے بارے میں پوچھے، حالات کے بارے میں پوچھے. بہت دیر تک اچھی گفتگو رہی. ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اور ان کی خبر کو کشادہ فرمائے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ان کے جو فرزند قابل ہیں، جانشین ہیں، انشاءاللہ وہ ان تمام اپنے بزرگوں کی جو راستے پر وہ بھی چلیں گے. اپنی طرف سے ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے تمام حضرت مولانا خسرو حسینی صاحب کے افراد خاندان کو اور ان کے تمام مریدوں کو اور خاص طور سے گلبرگہ کے عوام کو میں اپنی طرف تعزیت پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ہم آپ کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے رہیں گے. صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں وجے نگر کالونی ڈویژن میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں رکن اسمبلی نامپلی محمد ماجد حسین کی نگرانی میں نمائندہ رکن بلدیہ ڈاکٹر محمد قاسم نے اپنے ڈویژن کے مختلف مقامات کا دورہ کر کے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا. اس موقع پر انہوں نے 8,50,000 روپے کی لاگت سے کیے جانے والے کاموں کا جائزہ لیا، جس میں VDCC روڈ کے تعمیراتی کام، مسجد جہارہ کے پاس سڑک کے پیچ ورک کے علاوہ اویس کالونی کے ترقیاتی کام شامل ہیں. اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ چار مینار کے مختلف علاقوں کو خوبصورت بنانے کے سلسلے میں کام جاری ہیں. چہارشنبے کی رات رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے مختلف مقامات پر جاری کاموں کا معائنہ کیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سٹی کالج کے پاس 25 لاکھ روپے، زچگی خانے سے پرانا پل تک ڈیوائیڈر کی تعمیر 90 لاکھ روپے سے کی جا رہی ہے. ٹیپو خان مسجد سے مدینہ بلڈنگ تک بھی 35 لاکھ روپے کا کام منظور ہو چکا ہے. ان کاموں کی تکمیل سے سڑکیں اور بھی خوبصورت ہوں گی اور اس سے ٹریفک کے مسائل بھی حل ہوں گے. اس موقع پر متعلقہ عہدیدار اور مجلس کے کارکن بھی موجود تھے. صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے حلقہ اسمبلی گوشہ محل کا دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے پٹیل نگر کے فیس نمبر 1, 2 اور 3 میں ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا. دورے میں ان کے ہمراہ محکمہ آبرسانی کے جنرل مینیجر، ڈپٹی جنرل مینیجر،
नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खान और मजलिस के सदर व मुतमदीन ने भी हिस्सा लिया। रहमत बेग ने अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी ताकि तरक्याती काम जल्द पूरे किए जाएं। अंबरपेट के इलाके में एक नौजवान अचानक सड़क पर गिरकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की शाम करीब 4 बजे नौजवान सड़क से गुजर रहा था कि वह अचानक सड़क पर गिर गया। मुकामी अफराद और अंबरपेट पुलिस ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब न हो सकी और वो जांबर न हो सका। शुबा किया जा रहा है कि इसे शदीद हार्ट अटैक आया होगा। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात जारी है। बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े मोहम्मद कॉलोनी में एक वहशी शख्स की तरफ से सास की मुबैना इस्मत रेज़ी का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। मुतासरा खातून की बेटी ने बताया कि वो अपनी बहनों के साथ निज़ामाबाद गई हुई थी। उसके शौहर शाकिर ने कुफल तोड़कर उनकी वालदा की इस्मत रेज़ी की है। मुतासरा खातून की बेटी ने बताया कि उन पर मसालहत के लिए दबाव डाला जा रहा है और पुलिस इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई नहीं कर रही है। मुलजिम की निस्बती बहन ने भी इल्ज़ाम लगाया कि उनका बहनवई शाकिर उसे भी हिरासा कर रहा था। मुलजिम की बीवी ने बताया कि गुज़िश्ता कई महीनों से शाकिर उनके तमाम अफराद ख़ानदान को हिरासा करता रहा है। उन्होंने अपील की है कि इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी जा रही है। ताहम पुलिस ने बताया कि शाकिर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने मुकामे वाक़े का भी मुआयना किया। पुलिस ने तयक़्क़ुन दिया कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और मुतासरीन को इंसाफ दिलाया जाएगा। मीरालम तालाब के करीब हसन नगर के इलाके में सांप के नजर आने से सनसनी देखी गई। मुकामी अवाम ने बताया कि मीरालम तालाब से अक्सर सांप रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। हालिया बारिश के मौसम के बाद इलाके में अक्सर सांप देखे गए हैं और चारशंबे की रात सांप के नजर आने के बाद इसे पकड़कर मीरालम तालाब के पास छोड़ दिया गया। मुसलसल सांपों के रिहायशी इलाकों में आने से मुकामी अवाम में तशवीश देखी जा रही है। मंचरियाल की मुकामी अदालत की तरफ से नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों को हॉस्पिटल की सफाई की सज़ा सुनाई गई है। तफसीलात के मुताबिक 27 अफराद नशे की हालत में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े गए थे। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए उन्हें अदालत में पेश किया। मुकामी पुलिस के मुताबिक 27 अफराद को अदालत ने यह सज़ा सुनाई कि मुकामी माता शिशु हॉस्पिटल के 1 हफ्ते तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सफाई करें। जुमेरात को पुलिस की मौजूदगी में सजा याफ्तगान ने हॉस्पिटल की सफाई में हिस्सा लिया। ज़ेरे समात कैदी के साथ रेस्टोरेंट में बिरयानी खाना पुलिस मुलाजमीन को महंगा पड़ा है। 7 पुलिस मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश की राजमंद्री जेल में महरूस ज़ेरे समात कैदी अनिल को मंगलगिरी की अदालत से जेल मुंतकिल किया जा रहा था। इस दौरान कैदी की तरफ से बिरयानी खाने का इसरार किया गया। पुलिस जवान इसे रेस्टोरेंट ले गए और फिर उसका वीडियो वायरल होने के बाद गुंटूर एसपी सतीश कुमार ने फौरी कार्रवाई करते हुए 7 पुलिस मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है। इस मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोरी चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोरी चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड।
Musa Enclave, SA Colony, Toli Chowki, MSN, Diamond Hills Colony, Toli Chowki, Azal Residency, SA Colony, Toli Chowki, Serene Heights, Golden Sand Colony, Toli Chowki, Darul Amaran, Happy Homes Colony, Alkapur, Darul Khair, Suryanagar Colony, Toli Chowki, Delight Suit, beside Sana Enclave, Toli Chowki, Akbar Enclave, Golden Sand Colony, Toli Chowki. Uncompromised quality constructions, on time delivery हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax Builders and Developers, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। 2 लाख सरकारी मुलाजिमतों के लिए रियासती हुकूमत पाबंद अहद। 50,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात, जॉब कैलेंडर जारी। अशोकनगर में कोचिंग सेंटर का भट्टे विक्रमार्का ने किया इफ्तिताह। फार्मूला 1 रेस के मामले में तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार, मुआहदे के मुताबिक काम किया है KTR का दावा। वक्फ पार्लिमानी कमेटी के सरबराह पर कवायद से इन्हिराफ का इल्जाम। बैरिस्टर ओवैसी की स्पीकर लोकसभा से नुमाइंदगी। और बीवी की गैर मौजूदगी में सास की मुबैना इस्मत रेजी का शर्मनाक वाक़या। बालापुर पुलिस वहशी शख्स की तलाश में। मुतासरीन ने इंसाफ और मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालिबा। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।